अच्छा जी, वी जी स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट theory that we need to understand is information symmetry hypothesis. Information symmetry hypothesis हम कहते हैं, ठीक है। Information symmetry का मतलब होता है that information once it transmit it can be different for two different people, के लिए different हो जाती है because शायद बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या दो इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो है कैन नॉट बी बाईपास simultaneously for two different investors because of different reasons. So first we can classify this information symmetry hypothesis that investors can be categorized into two ways. Number one is informed investors and second is uninformed investors. Informed investors का मतलब होता है that these are the institutional investors, and institutional investors का मतलब companies हैं, and if they want to participate in IPO, they will be having different perspective because they have the resources, they have more capabilities, they have different kind of staffs, so they can analyze, and once they can find out that they will be getting positive returns, they then can participate. अगर positive return होगा तो informed investors are the institutional investors, वो companies होती हैं, and if companies are investing, they are trying to do their homework, they can analyze whether they will be getting some kind of profits. If they have if they will get some profit, they then can participate. IPO में तभी वो शेयर बाय करेंगे, मैंने भी कहा कि शेयर बाय करना है, सिर्फ ऑफर प्राइस पे पार्टिसिपेट करना है। they We don't know that what could be the market price. It can, we know that it can be transacted after a month, after a year. So we understand that if the institutional investors, because they actually buy information because they have the resources, and they then can analyze whether they will be getting some positive returns, they can only participate. Whereas uninformed investors are the common investors, are the general investors. They have a very small amount of money, so they can invest in stock market, or they can invest in IPO. So they have very small amount, so they don't have the resources, so they can analyze whether they will be participating in those IPOs where they will be getting positive or negative returns. So without investing, without investigating that whether they need to participate in positive in IPOs where they will be getting positive returns or negative returns, so they don't have the capability. So they are just trying to put their money in an IPO where they will be getting negative returns. So इसलिए negative बन जाते हैं because IPO में जो institutional investors है, they are trying to participate in an IPO where they will be getting positive returns. तो उन्हें पता चल जाता है कि किन IPOs में positive returns हो सकते हैं. So on the basis of those IPOs where they will be getting positive returns, they will be investing money, but they will not investing money where they will be getting negative returns. So it means that IPOs where they will be getting positive returns, or basically the institutional investors are investing in those shares in those IPOs. So it means that no share will be left that can be given to uninformed investors. There may be possibility, but generally speaking, we are trying to distinguish between these two. And uninformed investors जो है वो invest करना चाहता है, और वो negative इसलिए invest करता है because institutional investors are not investing money in those IPOs. So we are just trying to categorize informations, which means that there are two kind of investors, and they actually evaluate the information from their own perspectives, because one have the resources and they can find out whether they will be getting positive returns, so they then can participate, whereas uninformed investors are participating without having resources, without having information, so that's where they will be getting negative returns. So here मैं आगे मजीद इसको classify करता हूँ. Due to information symmetry, uninformed investors will purchase those shares which are to be overpriced and ultimately a negative return. So इसलिए कि सारे shares तो शायद institutional investor ले लेता है जहाँ positive return होता है, so they are not investing where they will be getting negative returns. So there is only possibility that uninformed investors will be investing in those shares where they will can attain negative returns. As a result, uninformed investors will be successful in obtaining shares of overpriced issue, but will be unsuccessful at obtaining shares of the underpriced issue. This imposes a situation known as winner curse. इसको मैं winner curse को अगर यूं define करूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, because informed investors are the winners and they are cursed to participate in those IPOs where they will be getting positive returns. दोबारा रिपीट करता हूँ जी. विनर कर्स का मतलब यहाँ ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर दी, या इसको कहूँ कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स आर द विनर्स because they are cursed
to participate in an IPO where they will be getting positive returns. इसको in shorting भी किया जा सकता है. To make these issues attractive for uninformed investors, IPOs are issued at a discount, resulting in earning of positive returns. Hence, Winner-Curse theory elaborates that information asymmetry can be reduced between informed and uninformed investors that will lead to decrease the underpricing. The quality of issue. As such, the number of uninformed investors decreases, which subsequently reduce the winner curse problem in IPO, because informed investors जब कम हो जाएंगे, it means that uninformed investors can also participate in those issues and they will be getting positive returns. भी कहा था कि IPO जब भी issue होता है तो IPO can be issued with the help of the underwriters, and there are two kind of underwriters that can issue shares. The prestige of the underwriter is good. The prestige of is high prestige, and the underwriter जो है वो बैंक है, investment bank होता है. But the question is that we cannot quantify underwriters' prestige into high and low, because we cannot say that National Bank is having low prestige, Habib Bank is having high prestige. We don't have the ability. Basically, prestige is a repute. So some banks having good repute, having high prestige, and some banks are having low prestige and low repute. So it is difficult to quantify. But from the perspective of an IPO, we are trying to make an assumption that those banks, those underwriters which are involved in more activities of an IPO, मैं कहता हूँ एक सैंपल 100 IPOs का सैंपल है और उसमें से एक ऐसा अंडरराइटर है जो 60 IPOs में इन्वॉल्व है. दे आर trying to evaluate and then they determine the price of the IPO. So once an underwriter is involved in number of transactions, इसका भी छोटा सा फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं कि जो प्रोसीड उस बैंक ने रेस की, उस अंडरराइटर ने रेस की, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोसीड ऑफ द इंटायर अंडरराइटर्स इन द इंटायर सैंपल. तो मैं इसको कह सकता हूँ शायद वो प्रोपोर्शन बनेगा 10%, तो प्रोपोर्शन बनेगा 9%. इसी तरह वो अंडरराइटर जो है शायद उसकी प्रोपोर्शन कम होते होते 0.01, 0.05, 0.001 बन सकती. सो the high percentage जो वाले हैं, that 10%, 9%, 8%, it means that out of the sample IPOs, the 10% एक जो prestige है underwriter की किसी बैंक की, they are in about 10%. They have contributed towards the issuance of share, and they have more skills, knowledge, and understanding, so they can find out how they can determine the price of the shares. तो share को determine करने के लिए जो है वो once they have more skills, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि once they are doing this exercise for number of IPOs, they have more understanding, they have more skills, they have more capabilities to find out that what would be the price of the share. जो IPO होता है उसकी प्राइस जो मैंने कहा 10 रुपए होती है, ऑफर प्राइस होती है, वो ऑफर प्राइस अंडरराइटर डिटरमाइन करता है. So this offer price can be 10, this offer price can be 15, it can be 20, but it all depends upon the underwriter's will, underwriter's prestige, because the IPO objective of the IPO is to sell all the shares, and if underwriter fails to sell all the shares, they will buy the rest of the shares. So underwriters are trying to set lower offer price in order to justify that they can dispose all the shares. But if the prestige of the underwriter is high, they can determine the price. That price can be close to 15 rupees, and then they have these skills, so they know that this company is having good repute, and then the shares of those companies can be disposed in the market. So underwriter prestige जितनी ज़्यादा होगी, the offer price, the probability that the offer price would be higher. और ऑफर प्राइस जब ज्यादा होती है, दैट कैन बी क्लोज टू द मार्केट प्राइस. तो हाई प्रेस्टीज होगी तो इसका मतलब है बेनिफिट कंपनी को हो रहा होगा, लेकिन उसका जो अंडर प्राइसिंग है या पॉजिटिव रिटर्न के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे. सो हाई द प्रेस्टीज ऑफ द अंडरराइटर, लो द चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग. लेकिन एक ऐसा अंडरराइटर जिसने शायद 2, 3, 4 ट्रांजैक्शन में ही इन्वॉल्वमेंट की है in issuance of an IPO, so they don't have the capabilities, they don't have the skills, so the percentage जो total proceed की बनती है वो शायद 0.001% बनती है. So they are not involved, so they don't have skills to find out that what will be the price
at which the shares can be offered. So that's why they are trying to set a lower offer price. And once they are trying to set a lower offer price, there is more probability, chances of underpricing would be high. So the probability is that underpricing would be high. So the low prestige of the underwriter, the chances of underpricing would be high. So there is an inverse relationship exists. Actually, there is an inverse relationship exists between the underwriter prestige and underpricing. So recent study predict a positive relationship between underwriter prestige and underpricing. और जिस इस पॉइंट को जिस वक्त रेफर किया जा रहा है उस वक्त ऐसा था 90s से लेके 2000 तक most of the companies underwrite their own shares. So that's why they actually they are good companies, but they are trying to set a low offer price and chances of underpricing would be high. So in some instances we can find out that there is a positive relationship, but practically speaking there is an inverse relationship. Underwriters intentionally underprice new issues so as to take advantage of the underpricing. So this may be a reason that we can quote and we can justify in one of that where the prestige high and the pricing would be high. But other researchers argue that high prestige underwriters have access to superior information and uses this to obtain more valuable issues. And once they can utilize their resources, their skills, and their information, so there is an inverse relationship exists between underwriter prestige and underpricing. So we discussed two theories here. That is basically focusing on the information symmetry hypothesis, and second is underwriter's prestige. If you have any question, you can ask, or at the end of all the theories, then you can ask if you have. The third most important theory is the exante uncertainty. Exante जो है वो रिस्क को शो करती है और मुझे ये पता है कि जब रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. So that's why we can quote it and we can relate. And this actually theory is relating to all most of the time. It can be related to all the variables that we have as independent variable, because we know that if risk is higher, the return would be higher. If the company is having a different kind of characteristics and these characteristics are very weak, if then we can find out they are referring to the risk, and the investors can claim higher returns. So risk creates more returns. So we can justify here. So we can add that how we can use this variable into different kind of proxies. So they argue that greater the extent uncertainty of an issue, higher the information symmetry, which will lead to a higher underpricing. जितनी ज़्यादा risk होगा उतनी information symmetric होगी, information सही नहीं होगी. So that's why the chances of underpricing would be higher. Empirical studies have used various proxies to measure exante को measure करने के लिए बहुत सारे variables choose किए. For instance, अगर मैं इसको divide करना चाहता हूँ, we can divide into 4 groups: company characteristics, offering characteristics, prospectus disclosure, and aftermarket variables. कंपनी के characteristics कौन से हो सकते हैं? For example, कंपनी की एज की बात कहता हूँ. If age is of the company is 1, 2, 3, 4, 5 years, so it means that company is a very young company. And if the age of the company is 50 plus होगी तो company is a mature firm. So mature company में या mature firm में we have low risk because they actually spent 50 years in the market, and we can find out that they will be getting positive or negative returns. But the question is that they actually spent huge time in the markets, and so that's why the riskiness linked with the uncertainty that the company can survive or not, it would be lower, and the chances of a risk would be lower, and because of the low risk the return would be low. So I'm just trying to make a point that if a company is mature, जिसकी एज ज़्यादा होती है, उसमें रिस्क के चांसेस कम होते हैं. ये एक्सेप्शन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है. देयर मे बी एन एक्सेप्शन कि कंपनी की मेच्योर हो जाए और वो रिस्क ज़्यादा उसमें आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा. So they actually face different kind of time periods, so that's why their risk would be lower, and the risk कम होगा तो फिर return के chances भी कम होंगे, तो underpricing कम होगी. So those companies which are having mature firm, they are actually mature. If they are mature, then the chances of underpricing would be lower. ठीक है जी. और लेकिन अगर एक company young है तो उसमें risk ज़्यादा होगा, and because of the risk, the investors can claim more returns. So that's why the chances of underpricing would be high. So age का मैंने ये कहा है कि there is an inverse relationship exists between the underpricing and age of the firm. एज ज़्यादा है तो अंडरप्राइसिंग कम होगी. रिस्क इसलिए एज ज़्यादा है, इसलिए मेच्योर इसलिए है क्योंकि रिस्क कम है, और मेच्योर कंपनी का रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा. इसको इस
इस ट्रायंगल से अगर हम पढ़ें देन वी कैन अंडरस्टैंड। एंड देन आगे जाके मजीद इसमें ऐड करता हूँ साइज ऑफ द फार्म। आपने सुना होगा साइज है वो दो किस्म की प्रॉक्सी से मैयर किया जा सकता है, या तो टोटल एसेट का लॉग ले लूँ या मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉग ले लूँ। एंड देन वी कैन फाइंड कि जितना एसेट बड़े होंगे तो कंपनी बड़ी है, और जब साइज ऑफ द फर्म बड़ा होता है तो रिस्क कम होता है। रिस्क इसलिए कम है क्योंकि दे हैव मोर रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, सो देयर मे बी अ प्रोबेबिलिटी कि वो जो उसकी जो साइज है उसकी वजह से रिस्क कम होगा, और जब रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। सो हायर द एज ऑफ द हायर द साइज ऑफ द फर्म, लोअर द चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग, अगेन वी हैव नेगेटिव रिलेशनशिप। इसी तरह आगे जाके मजीद इसमें ऐड करूंगा वेरिएबल कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। लाइकवाइज वी हैव ऑफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि ऑफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है जो शेयर इशू किया जा रहा है उसकी जो क्या फीचर्स हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑफर प्राइस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफर प्राइस जो है वो ऑफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ऑफर है वो सब ऑफर प्राइस जो है वो सबसे पहला फीचर होता है। ऑफर प्राइस जब कम होती है ना, मैंने आपको बताया कि वंस ऑफर प्राइस वुड बी लो, द गैप बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड ऑफर प्राइस वुड बी हाई। तो गैप ज्यादा हो जाएगा। वंस द गैप वुड बी हाई, द चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग वुड बी हाई। लेकिन जब ऑफर प्राइस ज्यादा होती है, अंडरराइटर ज्यादा रखना चाहता है इसलिए कि जब ज्यादा इसलिए कि दे इंश्योर दे हैव द स्किल्स दे कैन सेल दो शेयर्स, एंड वंस the price is close to the market price, the chances of underpricing would be high. So offer price ज्यादा होती है तो underpricing कम होती है। So again we have an inverse relationship। आगे भी मजीद इसमें आते हैं, डिस्कस करता हूँ। Prospectus disclosure is an important characteristics, and prospectus में जो चीजें डिस्क्लोज की जाती हैं वो अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर जो है मैंने शो किया है जिसकी रिप्यूट मार्केट में बहुत अच्छी है। जब रिप्यूट अच्छी है तो रिस्क कम है कि कंपनी कैन नॉट सर्वाइव। सो बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग वुड बी लो। और आफ्टर मार्केट वेरिएबल का मतलब है जब मार्केट में शेयर फ्लोट होता है उसकी जो प्राइस में जो वेरिएशन होती है, उसकी जो प्राइस में जो स्टैंड डेविएशन है, और स्टैंड डेविएशन जितनी ज्यादा होगी उतना रिस्क ज्यादा होगा। सो हेयर आफ्टर मार्केट वेरिएबल बेसिकली a variable that links with the market return, that links with the market volatility, and then links with the risk of the fluctuation in the price of a share of a company जिसके शेयर फ्लोट किए जा रहे हैं। So because all these factors are concerned with the ex-ante, and because creating a risk on the part of the firm, on the part of an IPO, so ultimately the return will be affected. So returns can be affected also. So we discussed three theories here, and then we move on to the next theory, that is a signaling mechanism. And signaling mechanism आपने सर पढ़ा होगा। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर है, जो साइज ऑफ फर्म है सर वो आपने बताया हम लोग मेजर कर सकते हैं टोटल एसेट का लॉग ले लें, एंड द सेकंड वन मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है जो स्टॉक मार्केट में, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स ट्रेड इन द मार्केट मल्टीप्लाई विद देयर ऑफर प्राइस। तो ये आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाती है हर सर कंपनी ये सर ये अगेन प्लीज रिपीट कर दें फॉर्मूला। की। फार्मूला है, मैंने कहा कि नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, ट्रेडेड का मतलब है बाइंग हो या सेलिंग हो, शेयर्स की टोटल शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड होते हैं, ओके नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, ब्रैकेट में लिख लें बेशक बाइंग एंड सेलिंग, जो जितना भी बाइंग या सेलिंग हो रही है, जितना ट्रेड हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करें ऑफर प्राइस के साथ, उससे मार्केट मल्टीप्लाई करें मार्केट प्राइस, क्लोजिंग मार्केट प्राइस के साथ। क्लोजिंग मार्केट्स। जी, क्लोजिंग मार्केट प्राइस से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट विल गिव यू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, and this can be utilized as a proxy of a firm, classifying that the company is a is a is having a high size or low size of the firm। तो ये बता सकते हैं मुझे, ठीक है। ओके ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट है सिग्नलिंग मैकेनिज्म। और सिग्नलिंग आपने पढ़ी होगी पहले कि सिग्नल क्रिएट करता है कोई भी डिविडेंड कंपनी अगर देती है, इट क्रिएट अ सिग्नल। कंपनी प्रॉफिट बनाती है, इट्स क्रिएट अ सिग्नल। कंपनी लॉस बनाती है, द प्राइस ऑफ अ शेयर जो है वो इफेक्ट होती है नेगेटिवली, बिकॉज इट क्रिएट अ on the part of the company, it creates a positive signal on the part of the firm। लेकिन यहाँ सिग्नलिंग का मतलब आईपीओ के अंदर टोटली डिफरेंट होता है। सिग्नलिंग का मतलब यहाँ ये नहीं होता, ठीक है। मैंने ये भी कहा था क्लास के अंदर कि पहले कंपनी आईपीओ करती है, दैट कैन बी 15% के बाद। अब मजीद कंपनी अगर शेयर करना चाहती है तो वो एसपीओ करेगी, जिसको हम सेकंड पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, सीधा थर्ड पब्लिक ऑफरिंग भी हो सकता है।
सो वो 1 साल के बाद भी हो सकता है, 2 साल भी, 10 साल के बाद भी हो सकता है। सो होता ये है कि दोज कंपनीज interested to float the shares with the help of SPO। ये सिग्नलिंग थ्योरी वहां अप्लाई होती है जहां कंपनीज एसपीओ में इंटरेस्टेड होती हैं, एसपीओ भी करना चाहती हैं, यानी कि आईपीओ के बाद सेकंड पब्लिक ऑफरिंग भी करना चाहती हैं। सो कंपनीज जिन्होंने एसपीओ करना है, अगर वो आईपीओ में दे आर ट्राइंग टू सेट अ लोअर ऑफर प्राइस, दे आर ट्राइंग टू सेट अ लोअर ऑफर प्राइस, वो कम प्राइस रखना चाहते हैं। आईपीओ में जो कंपनी दोबारा शेयर करना चाहती है, करेगी फ्यूचर में, टुडे दे आर ट्राइंग टू सेट अ लो ऑफर प्राइस। जब कम प्राइस होगी, मैंने आपको बताया कि जब ऑफर प्राइस कम होती है तो अंडर प्राइसिंग ज्यादा होती है। वंस the companies are trying to issue their IPOs, they are trying to set a low offer price, which leaves a good taste in investors' mouth, because the investors are interested and the investors understand that they will be getting more returns if the company is for issuing their further shares. So actually, they have created a signal that company is giving more returns. So second time the company is issuing their shares, they can set, now they understand जो भी company price रखेगी, investors will participate paid, because they understand that they will be, earlier they actually obtained high returns, and now this time they also want to get high returns. So that's why they are trying to but in this case, second time the companies are trying to set a higher offer price। जब ऑफर प्राइस ज्यादा करती है ना कंपनी, तो कंपनी ज्यादा ऑफर प्राइस करती है और कंपनी की को बेनिफिट होना चाहती है। नाउ इन दिस केस आईपीओ में तो कंपनी बेनिफिट नहीं हो रही, इन्वेस्टर बेनिफिट हो रहा है, कर रहा है, ठीक है। लेकिन नाउ इन दिस केस द कंपनीज वांट टू टेक a benefit, so they are trying to set a higher offer price, but investors will be getting very small returns. So basically यहाँ signaling का मतलब है, once the company is trying to issue their shares, they are trying to set a lower offer price, price कम रखती है इसलिए because it actually leave a good taste in investors mouth, and investors actually perceive that they will be getting further returns, they will be getting more returns if they participate in the same company. But once the SPO will undertake, generally speaking, the companies are trying to set a higher offer price, and now this time the company wants to take a benefit and investors will be getting very nominal returns। तो बहुत थोड़ा सा रिटर्न बनता है, लेकिन जनरली ये परसेप्शन है कि होता ऐसा ही है। लेकिन because now this time again, the second time, the investors actually are trying to deceive the investors, because investors perceive that they will be getting high returns, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता, ठीक है। By providing good signal to the market, the firms will issue subsequent season offering at higher price, और मैं डिस्कस कर चुका हूँ, then returns would be low। एंड देन लास्ट टू थ्योरीज पर जल्दी खत्म कर रहा हूँ, इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन चल। अंडर द मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस, फर्म हैव इंसेंटिव टू अंडरप्राइस आईपीओस व्हिच रिड्यूस द मॉनिटरिंग बाय न्यू शेयर होल्डर्स एंड लार्ज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ये मॉनिटरिंग मुझे इसलिए पढ़ना पड़ा है क्योंकि वी नो दैट 100% शेयर्स आर ओन्ड बाय द फर्म, लेकिन जब आईपीओ होता है तो आईपीओ में ये तो कहता हूँ कि 10% या 15% होता है, बट समटाइम्स आईपीओ जो है वो 50% शेयर्स या 60% शेयर्स का भी हो सकता है। अगर कंपनी 20% शेयर इशू कर रही है, नाउ द ओनरशिप नाउ डाइल्यूट टू 80%। लेकिन जब कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है, कंपनी शेयर इशू कर रही है 50% या 60% शेयर्स, इन दिस केस द ओनरशिप नाउ डाइल्यूट होके वो 40% बचती है। द ओनरशिप डाइल्यूशन जो है वो कम होके 40% बच जाएगी। नाउ इट मींस दैट द कंपनी मे नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल। I'm just trying to make a point, two things here, that if the company is issuing only 20% shares, the company is issuing 60% shares. अगर 20% company issue करती है shares, they are less concerned that at what price they need to sell their shares. वो कम concern नहीं होता उसको, they are less concerned that what would be a price they are trying to set, या underwriter जो भी price set करता है 10 रुपए करे 12 रुपए करे, so they will be less concerned that at what price the shares are to be disposed। लेकिन जब कंपनी 60% शेयर डिस्पोज करना चाहती है, नाउ दे आर मोर इंटरेस्टेड टू गेट मोर प्राइस, ज्यादा प्राइस लेना चाहती है। सो इन दिस केस वंस द कंपनी इज ट्राइंग टू फ्लोट मोर नंबर ऑफ शेयर्स या हाई नंबर ऑफ शेयर्स, देन वी कैन फाइंड आउट दैट दे आर ट्राइंग टू सेट अ हायर ऑफर प्राइस। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कम नंबर ऑफ शेयर्स इशू होते हैं तो अंडर प्राइसिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन जब कंपनी ज्यादा शेयर इशू करना चाहती है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कंपनसेट देमसेल्व्स एज वेल, बिकॉज it's a strategy that they want to exit from the market। Number one, exit का मतलब है मार्केट से बाहर जाना चाहते हैं, they are now investing in some other businesses, तो इसलिए they want to get more price।
ये भी एक रीजन है। दूसरी रीजन ये भी है दैट वंस द ओनरशिप इज डाइल्यूट, यानी उनका सारा कंट्रोल अगर खत्म हो जाए, 40% बचेगा, दे हैव लेस कंसर्न इन पॉलिसीज decision making, they have less concern that how the company is going for the product development. So that's in this case there is a probability that they are actually losing their ownership, and that's what they have to be compensated with high returns. तो जब ज्यादा शेयर इशू होते हैं तो the chances of underpricing would be low. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कम शेयर इशू होंगे तो कंपनी कंसर्न नहीं होती किस प्राइस पे उन्होंने शेयर सेल करने। सो वंस दे आर ट्राइंग टू सेल लो ऑफर प्राइस, द चांसेस ऑफ अंडरप्राइसिंग वुड बी हाई। तो मैंने कहा कि कम प्रोपोर्शन होगा तो अंडरप्राइसिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन जब ज्यादा शेयर कंपनी शो करना चाहती है 60%, दे आर कंसर्न दैट they are getting higher offer price. तो offer price जब ज्यादा रखूंगा that can be close to the market price. So higher the number of shares the company wants to float, the chances of underpricing on the part of the company would be low. ठीक है जी, यहाँ तक समझ आती। The last model that we need to understand from the article that we discussed, that is a lawsuit avoidance hypothesis. Lawsuit avoidance मैं यहाँ से पढ़ता हूँ फिर आता हूँ आपको डिस्कस करता हूँ। Indicate that firms underprice their IPOs to reduce lawsuit from investors. ये जो प्रोस्पेक्टस होती है ना जी, the IPO prospectus is more crucial. लेकिन शायद हमने एज ए पाकिस्तानी या एज ए डेवलपिंग कंट्री का मेंबर जो भी होता है, वी आर लेस कंसर्न कि वो जो हमें प्रोस्पेक्टस दी गई हमने कभी नहीं पढ़ी उस प्रोस्पेक्टस। बट समटाइम्स द प्रोस्पेक्टस में हैव मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, शायद वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती, उसमें कोई एरर्स भी हो सकता है, कोई ओमिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर जो उस कंपनी से शायद लिंक ना करता हो, उसके कंपनी से एसोसिएटेड ना हो, now still we can quote and then we can attract more and more investors को attract करने के लिए we can use his her name हम use कर सकते हैं। so मैंने कहा कि 99% जो है वो शायद नहीं पढ़ते लोग prospectus। लेकिन डेवलप कंट्री की बात करता हूँ तो if the information is not correct, if there is any error, if there is any misleading information, the investor can take a company to the court। जब कोर्ट में चली जाएगी कंपनी, अब आईपी होता है कि नहीं होता, बट एक्चुअली इट क्रिएट रिस्क ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। और अगर कंपनी शेयर फ्लोट कर देती है और फिर वो लिस्ट भी हो जाता है स्टॉक मार्केट पे, तो रिस्क की वजह से द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न वुड बी हाई। तो जितना रिस्क ज्यादा होगा रिटर्न भी ज्यादा होगा। सो दिस इज द टोटल assumption that we have, and these are the 5-6 model that we have discussed। पाकिस्तानी मार्केट में मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन स्टिल वी कैन मूव देन वी कैन फाइंड आउट कि इन पाकिस्तान में 91 से जी आईपीओ का प्रोसेस शुरू हुआ और बहुत रिगोरस शुरू हुआ। आगे डायग्राम भी शायद हो लेकिन नहीं है इसमें। 91 के बाद नंबर ऑफ रिफॉर्म्स टुक प्लेस बाय द पाकिस्तानी मार्केट, बट स्टिल 91 से लेके 96 का एरर देखें तो उस सारे पीरियड के अंदर शायद मोर देन 300 या 250 आईपीओ हो गए थे। और अभी तक मैं देखूंगा 2000 से लेके और 2020 तक शायद अभी तक भी 130-140 आईपीओ हुए हैं 20 सालों में। लेकिन वो सिर्फ ओनली 6 years में वी एक्चुअली थ्रू जो की आईपीओ दैट वर अराउंड 300। तो इतने ज्यादा आईपीओ इसलिए कर दिए गए बिकॉज द कंपनी अंडरराइट देयर शेयर्स एट देयर ओन, अंडरराइट देयर ओन शेयर्स। कंपनी खुद ही अपने शेयर्स को अंडरराइट करते थे बिकॉज सीएलए कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी थी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1881 एंड देन उसने बहुत सारा काम किया, लेकिन स्टिल दे वर अनएबल टू कंट्रोल दैट हाउ they can float their shares in the market. So companies underwrite their own shares, और ये बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे शेयर्स मार्केट में फ्लोट हुए और बहुत सारे कंपनीज भी डीलिस्ट भी हो गई, चली भी गई, इसलिए कि they actually convinced that they need to float their shares, but practically speaking they obtained the fund and then they were not able to survive in the market। तो पाकिस्तान में आईपीओ मार्केट बहुत वीक समझी जाती थी, लेकिन एससीसीपी हैज डिवाइस्ड डिफरेंट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स। जो सबसे बड़ा रिफॉर्म एससीसीपी का है वो ये कि दे कैन evaluate a company if they have the capabilities to generate revenues and profit in future, they then can float the shares of the particular company। तब उसका सारा प्रोसेस होगा। अदरवाइज सिर्फ द कंपनी इज नॉट हैविंग सफिशिएंट एबिलिटीज, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही ना हो, उसकी प्रोडक्शन सही ना हो, उसका सेक्टर सही ना हो, देन दे कैन नॉट प्रोसेस द एप्लीकेशन। नाउ वी मूव ऑन टू द डाटा, और मैं इसको खत्म करता हूँ जिसको आगे इसको है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो वी डिस्कस्ड इन दिस दैट जी जी
नहीं, कंपनीज पाकिस्तान में ज्यादा होती जा रही, कंपनीज तो बहुत सारी बढ़ती जा रही है, 600 700। पाकिस्तान में कंपनीज तो बहुत सारी हैं, पाकिस्तान में कंपनी शायद 1 लाख होगी, कंपनीज 1 लाख कंपनीज होंगी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उस 1 लाख के अंदर जो है वो एवरी कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। आईपीओ वही कंपनी इशू करेगी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है। And in order to list on the stock market, every company has to comply certain rules, certain procedures। मतलब ये कि वो जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट वो हर साल अर्न करती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उसके होने चाहिए, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, सब ऑल दीज थिंग्स इफ यू हैव, देन यू विल बी लिस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। यानी कि हर कंपनी शेयर नहीं इशू कर सकती, इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत थोड़े से जो स्टॉक मार्केट पे, टोटल स्टॉक मार्केट पे 550 कंपनीज लिस्टेड है। उसके अलावा 1 लाख 2 लाख कंपनीज होंगी, कंपनीज तो हर साल बढ़ती जा रही, लेकिन दे कैन नॉट लिस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट बिकॉज दे आर अनेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स that can be stipulated by the। जी, बिल्कुल यही है, यही है। जी, बिल्कुल। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही शेयर इशू कर सकती है, आईपीओ इशू कर सकती है। और प्राइवेट कंपनी तो 2 4 10 15 बंदे जिस तरह भी होंगे, दे डोंट हैव अ राइट टू दैट द शेयर्स कैन बी ट्रांसैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। ठीक है जी। जी जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। इसलिए कि दो दी चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग, इसलिए देखें अंडर प्राइसिंग जो ऐसे इन्वेस्टर होता है ना, जो इस कंपनी में जाना चाहता है, मेच्योर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो इसलिए करना चाहता है, दे वांट टू गेट सम स्टेबल अर्निंग्स, यानी डिविडेंड मिलेगा। ये इसका इस तरह की ना डिविडेंड मिलेगा, उसकी प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ेगी, इसलिए एवरीवन पार्टिसिपेट इन दो शेयर्स इन दोज कंपनीज वेयर कंपनी इज हैविंग लॉन्ग लाइफ। जिसकी ज्यादा लाइफ होती है वो कंपनी मेच्योर होती है, एवरी कंपनी वांट्स टू पार्टिसिपेट बिकॉज देखिए अंडर प्राइसिंग तो वन टाइम फिनोमेना है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी जो अच्छा इन्वेस्टर है वो दे वांट टू गेट मोर मोर रिटर्न्स, ताकि कैपिटल गेन बढ़े, डिविडेंड बढ़े। तो ऑल दीज फैक्टर्स दे कैन कीप इन माइंड, सो दैट्स व्हाई। जी जी। जी, अब वो तो ठीक है, देखें ये तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि आईपीओ हो रहा है इस कंपनी का, आप तो जाके उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो वी कैन मेक एनालिसिस एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि जितनी एज कम होगी उतना रिस्क ज्यादा होगा, उतना रिटर्न ज्यादा होगा। लेकिन जितनी कंपनी मेच्योर होगी उसका रिस्क कम होगा, उसका रिटर्न कम होगा। तो ये तो हम एनालिसिस कर रहे हैं पोस्ट आईपीओ के बाद। आईपीओ तो बहुत पहले हो गया था, आज हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। So if you want to participate, you need to consider this fact that if the life of the firm is जितनी ज़्यादा है 50 साल है, so you will be getting low returns, but if the company is young, then you will be getting high returns। तो ये इस तरह बनता है, ठीक है। अब मैं एक्सेल में डाटा निकालता हूँ थोड़ा सा, ताकि मजीद इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनका रिलेशन मैंने भी बनाना है जो कि नहीं बनाया है, ठीक है। अच्छा जी, हमने वेरिएबल्स मैं निकाल रहा हूँ, और ये वेरिएबल्स हमने डिस्कस करनी, और बहुत सारे वेरिएबल्स दिए हैं, मैं सारे वेरिएबल्स को वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, और फिर इसको कैसे कंप्यूट करना है उसके अंदर भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरे साइड पे एक साइड पे कंपनीज हैं, कंपनीज का नाम दिए मैं, इनका कोई यूज नहीं है। कंपनीज का नाम मैं अपने स्टार्टअप में इसको नहीं लेके भी चला जाऊँ तो कभी इस कंपनी का नाम को हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी रिग्रेशन नहीं होती। So then next we have underpricing, जो we have actually calculated, और ये market adjusted abnormal returns है, and we can see that we will be getting positive returns। मैं इसको बड़ा और मजीद करूँ, पॉजिटिव रिटर्न है, 21% रिटर्न कंपनी ने लिया, 2% लिया, 64% लिया, और ये
ओवर प्राइसिंग हो गई है जिसकी वजह से नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, ओवर प्राइसिंग है, अंडर प्राइसिंग, ओवर प्राइसिंग, एंड देन we can find out that some of the companies in Pakistan getting more than 174% return, 200% returns. और ये तो एक्चुअली डिपेंड अपॉन दी आईपीओ पे डिपेंड करता है कि वो आईपीओ कौन सा हो सकता है. सो एक्चुअली अंडर प्राइसिंग कैन वेरी एंड वेरी फ्रॉम आईपीओ टू आईपीओ, market to market, time to time it can vary. The next variable that we have to discuss is post issue promoter holding. ये है post issue promoter holding. मैं इसको दोबारा लिख भी लेता हूँ ताकि आप लिखना चाहें post issue promoter holding. आपके लिए लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको खत्म करूंगा क्योंकि रिग्रेशन में ऐसा फिर पूरा लाइन नहीं आएगी. तो ये है पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग. और ये पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग जो है इसको मैं अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जो कंपनी की जो आईपीओ इशू की है उसके बाद कंपनी के जो है वो डाइल्यूट हो गई है, कंपनी की जो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है वो डाइल्यूट होगी. मैं इसमें अगर ये लिखूं कि आईपीओ शेयर्स इशू हुए डिवाइडेड बाय, नहीं इसको मैं यूं लिखूं, ओनरशिप ऑफ द कंपनी, ओनरशिप ऑफ कंपनी आफ्टर आईपीओ. इसका मतलब ये है कि कंपनी की ओनरशिप आईपीओ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. सिर्फ ये लिखना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग का मतलब है प्रमोटर जो है वो कंपनी है. और यहाँ सिर्फ मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, पहले उसकी ऑनरशिप थी 100%, ना ऑनरशिप नाउ हैज डाइल्यूट टू पोस्ट इशू प्रमोटर, यानी इशू करने के बाद हाउ मेनी शेयर्स, हाउ परसेंटेज ऑफ द शेयर्स, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ द शेयर्स the company now own after the issuance of shares. So it can be 10%, it can be 90%. तो इसको ये पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग कहते हैं जी. जो कंपनी ने इशू शेयर कर दिए हैं और इसको डिवाइड किया टोटल शेयर से तो 60%. सो आफ्टर द आईपीओ द ओनरशिप जो लेफ्ट इट्स 60%, ओनरशिप जो है वो 35 बची है, ओनरशिप 67 बची है, ओनरशिप 25 है, ओनरशिप 50 है, 12% है. डिपेंड अपॉन के कंपनी कितनी पुरानी है, उसको अपने शेयर्स को एक्सेप्ट करना चाहती है 80%. और यहाँ सारी ही कंपनी ने अपने शेयर इशू कर दिए हैं. टीपी वन ऑफ द कंपनी, ये फंड होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स था, ये कुछ कंपनी के फंड हैं. इन 95 96 में कंपनी ने कुछ गवर्नमेंट हैज अलाउड फॉर फ्यू कंपनीज दैट कैन म्यूचुअल फंड जितने भी शेयर्स हैं वो सारे शेयर फ्लोट कर सकते हैं. तो ये सारे शेयर फ्लोट करने के बाद नाउ देयर ओनरशिप हैज बिकम जीरो. तो ऑनरशिप ये बता रहा है कि ऑनरशिप शेयर इशू करने के बाद ऑनरशिप कितनी बची है. तो 90% ऑनरशिप बची है, 75% बची है, 74% बची है. ठीक है. तो ये मैंने इसका रिलेशनशिप बताया था कि जितने ज्यादा कंपनी शेयर इशू करेगी उतनी अंडर प्राइसिंग कम होगी. ठीक है. लेकिन जितने कम इशू करेगी, यानी ऑनरशिप अगर ज्यादा बचेगी, अगर इसको यूं करूं ऑनरशिप ज्यादा बचेगी तो अंडर प्राइसिंग कम होगी, ऑनरशिप कम बचेगी, ऑनरशिप कम बचेगी तो अंडर प्राइसिंग कम होगी. ठीक है. ज्यादा बचेगी तो अंडर प्राइसिंग के चांसेस ज्यादा होंगे. अच्छा जी, ये आगे अगला लफ्ज मैंने लिखा हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन. इसको लिख रहा हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन. ये सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन. और इसका फार्मूला जो है, ओवर सब्सक्रिप्शन का फार्मूला जो है वो बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स डिमांडेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड. इसको हम, ये फार्मूला मेरे पास इसका बनता है, ये बनेगा. इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन है बेसिकली. सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपने 100 शेयर इशू किए, 100 शेयर सब्सक्राइब हो गए. ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है डिमांड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड. यानी 200 की डिमांड आ गई. 100 शेयर आपने फ्लोट किया मार्केट में, लेकिन उनकी डिमांड 200 हो गई. इसलिए कि आईपीओ में अंडर राइटर जो है वो रोड शोज करते हैं, दे कंडक्ट मार्केटिंग एंड देन दे कैंसल दो शेयर्स इन द मार्केट. तो शेयर्स मार्केट में जब फ्लोट होते हैं तो दे कैन क्रिएट मोर डिमांड. सो तो सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जाती है. ये अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है. अगर 1 से कम है तो अंडर सब्सक्रिप्शन है. ए 1 से ज्यादा, 1 का मतलब है कि 100 शेयर इशू करना है, कोई भी 1 लाख शेयर इशू करने, और ऊपर भी 1 लाख है, नंबर ऑफ शेयर्स की डिमांड भी 1 लाख होगी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड भी 1 लाख है, तो 1 आंसर आ जाएगा. लेकिन डिमांड 90,000 है और टोटल शेयर इशू करने हैं 1 लाख, तो आंसर आएगा 0.9. 1 से कम होगा तो अंडर सब्सक्रिप्शन बनेगा, अगर 1 से ज्यादा आ जाएगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन बनेगा. तो इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं. और ओवर सब्सक्रिप्शन क्यों होती है? ओवर सब्सक्रिप्शन उस वक्त होती है जब ऑफर प्राइस ऑफ द शेयर कम होती है. ऑफर प्राइस कम होगी तभी डिमांड ज्यादा होगी. ऑफर प्राइस अगर ज्यादा कर लूंगा, 20 कर दूंगा, तो डिमांड शायद
जो है वो कम हो जाएगी। सो ओवर सब्सक्रिप्शन जो है, ओवर सब्सक्रिप्शन इज हैविंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद रिटर्न। ऑफर्स ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगी, the chances of underpricing would be high. So there is a positive relationship exists between oversubscription and underpricing. ठीक है सर ये यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर डिमांडेड, तो ये आईपीओस के या लिस्टेड शेयर थे? नहीं, इसका मतलब ये है, दोबारा मैं रिपीट आगे वन था, दोबारा लिखता हूँ, इज इक्वल टू 1 लाख शेयर। मैंने जो शेयर इशू करने हैं ना वो 1 लाख है, लेकिन डिमांड मेरे पास आ रही है 150,000। ये डिमांड आ गई है और ये मैंने इशू किए हैं। लिस्टेड शेयर की बात नहीं हो रही, जो टोटल शेयर्स हैं वो अलग शेयर्स हैं। द कंपनी वांट्स टू फ्लोट 100,000 शेयर, ये फ्लोट करना चाहता है, ये नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड है, लेकिन डिमांड उनकी आ गई है 150। तो आंसर बनेगा 1.50। 1.50। सो नहीं वन सर, मैं जी, बात कर रहा हूँ इसकी, मतलब ये आईपीओस की या लिस्टेड शेयर्स की ऑलरेडी? मैं सिर्फ आईपीओ की बात कर रहा हूँ सर। कंपनी इशू करना चाहती है 1 लाख शेयर आईपीओ के थ्रू, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो 150,000 हो जाती है। एंड वंस वी कैन सॉल्व द आंसर इज, मैंने ये कहा कि अगर वन से आंसर बड़ा हो जाएगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगी, वन से आंसर कम हो जाएगा तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल ये 2.44 बता रहा है कि 2.44 टाइम्स, ये टाइम्स में लिखा हुआ है सारा, सब्सक्रिप्शन जो है 2.44 टाइम्स है। यानी 1 शेयर मैंने बेचना था, लेकिन उसकी डिमांड आई है 2.44, तो ये उसकी डिमांड आ जाती। तो 2.44 टाइम्स की डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर सेल करने हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1 लाख से, तो 244,000 शेयर्स वी हैव अ डिमांड, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, so we will be getting 2.4. This is oversubscription, that is under subscription. ये ओवर सब्सक्रिप्शन 10 टाइम्स, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो ये इस तरह हम Sir, इसको जी। sir, oversubscription has positive relationship between underpricing. Sir, it's mean. इसका मतलब ये देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन तभी होगी, कोई चीज सस्ती होगी तो आप उसको बाय करते हैं ना, मुझे बताएं। Yes. तो ऑफर प्राइस, वंस द ऑफर प्राइस वुड बी लो, द ओवर सब्सक्रिप्शन वुड बी हायर। ठीक है, Okay. और इसका हम कह रहे हैं कि अंडर प्राइसिंग ज्यादा होती है। मैंने यही कहा कि ऑफर प्राइस और अंडर प्राइसिंग के दरमियान क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, द चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग वुड बी हाई। तो जब भी प्राइस कम होती है तो अंडर प्राइसिंग ज्यादा होती है। सो ओवर सब्सक्रिप्शन तभी होगी वंस वी हैव लोअर ऑफर प्राइस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडर प्राइसिंग वुड बी हाई। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी, आगे है लिस्टिंग के Understand? लिए। One जी more जी, point. सर आपने पहले बात की कि ऑनरशिप अगर ज़्यादा बचेगी तो सर चांसेस किसके ज़्यादा होंगे, अगर हमारी ऑनरशिप अगर देखें ज़्यादा जब बचेगी? मैंने इसको उल्टा पढ़ा था, अब मैं इसको इस तरह पढ़ा क्योंकि वेरिएबल कंस्ट्रक्ट डिफरेंट हुआ है। मैंने ये कहा था कि कंपनी जब कम शेयर इशू करती है, दे हैव लेस कंसर्न दैट एट व्हाट प्राइस दे आर सेलिंग, तो प्राइस कम होती है। कम शेयर इशू करेगी तो प्राइस कुछ भी हो सकती है, प्राइस कम होती है, तो अंडर प्राइसिंग ज्यादा होती है, यही मैंने कहा ना। मैंने ये राइट कहा सर। था जब कम शेयर इशू करते हैं तो कंपनीज आर लेस कंसर्न दैट एट व्हाट प्राइस दे आर सेलिंग, तो अंडर प्राइसिंग ज्यादा हो जाती है। कम शेयर इशू करूंगा, 20% शेयर करूंगा तो अंडर प्राइसिंग ज्यादा होती है। यहाँ राइट। नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन जब मैं वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो पोस्ट इशू प्रमोटर का मतलब ये है, शेयर इशू करने के बाद मेरी ऑनरशिप कितनी होती है, डाइल्यूट हो जाती है, वो 80% आ जाती है। यस। जब 80% रह जाएगी तो चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग जो है वो ज्यादा होंगे। ओके। ठीक है, इसको रिवर्स पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ज्यादा शेयर इशू करने हैं तो अंडर प्राइसिंग कम होती है, इसलिए कि वी वांट टू गेट हायर प्राइस। और अगर मैं पोस्ट इशू में चला जाऊंगा तो वो अब वो डाइल्यूट होकर 40% रह जाएगी। तो जितनी ऑनरशिप कम होती है तो अंडर प्राइसिंग कम होती है, और जितनी ज्यादा अगर मैं ऑनरशिप मेरी रह जाती है तो चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग वुड बी हाई। तो दोनों का पॉजिटिव रिलेशन होता है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है वो है डिले, दैट इज अ लिस्टिंग डिले। मैं इसको लिखता हूँ फिर मजीद, दैट इज अ लिस्टिंग डिले। और ये दो डेट्स का डिफरेंस है, ये नंबर ऑफ डेज लिखे हैं सारे जो आपके पास 56 डेज हैं, और इसको मैं लिखता हूँ लिस्टिंग डेट, जिस दिन शेयर मार्केट पे ट्रेड होने लग पड़ा है, माइनस ऑफरिंग डेट। ठीक है, ऑफर डेट से लेके, मैंने कहा था ऑफरिंग में 2 दिन होते हैं, तो दूसरा दिन जो भी है, तो दूसरा दिन जो भी बनता है, ठीक है, इसको मैं चाहूँ कि मैं कहता हूँ लिस्टिंग डेट है आज की, और आज है 2 अक्टूबर 2020 माइनस, और इसको कहें 1 जनवरी 2020,
तो ये मेरे पास इसका नंबर ऑफ डेज बन जाएंगे। इसको मैं अगर 631 180 नहीं, ये तो ना ज्यादा हो गया। 30 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया है, हाँ 270 डेज, मैं कहता हूँ 270 डेज बन गए, ये 270 डेज बनते हैं। सो दिस इज द लिस्टिंग डिले। ये बता रहा है कि कितना टाइम लगा। लिस्टिंग डिले का मतलब डिले तो हो रहा है, लेकिन लिस्टिंग टाइम है कि लिस्टिंग टाइम जो है वो कितना ज्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है, लिस्टिंग डेट माइनस ऑफरिंग डेट। तो मैंने दोनों डेट्स को जूम करके 270 डेज लिखा है। अब मैं दो असम्पशन मजीद लेता हूँ। ये जो आईपीओ है ये 50 डेज में भी हो सकता है। सॉरी, इसको लिखना कैसे, इसको मैं अगर लिखूं, ये आईपीओ जो है वो 50 डेज में भी हो सकता है, ये आईपीओ 50 डेज में भी हो सकता था, आईपीओ 270 डेज में भी हो सकता है। मैं इसको अगर यूं एक्सप्लेन करूँ तो शायद बात समझ आए कुछ। अगर आईपीओ 50 डेज में हुआ है तो चांसेस ऑफ रिस्क वुड बी लोअर। तो असल में जितना ज्यादा टाइम गुजरता जाएगा, द अनसर्टेनिटी ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स वुड बी हायर, एंड इफ अनसर्टेनिटी या रिस्क वुड बी हायर दे कैन क्लेम मोर रिटर्न्स। तो जितना कम टाइम में शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो जाएंगे, इट क्रिएट्स लेस रिस्कीनेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिस्कीनेस द चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग वुड बी लो। कम दिन है तो अंडर प्राइसिंग भी कम होगी, लेकिन लिस्टिंग डिले अब 250-70 डेज हो गए। द इन्वेस्टर्स actually wants to wants to understand that they will be getting more and more risk, और उस रिस्क की वजह से the chances of underpricing would be high। ये पहले भी क्वेश्चन किया था मुझे ये अदनान ने कि अगर मुझे बताएं कि जी मार्केट प्राइस कैसे डिटरमिन होती है, तो मार्केट प्राइस ये रिस्क का फैक्टर है, लिस्टिंग डिले इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। और लिस्टिंग डिले बताता जाता है कि अब ये रिटर्न 10 रुपए का जो शेयर मार्केट में 15 का नहीं 16 का मिलेगा, तो इसलिए वो प्राइस उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमिन हो रही होती है मार्केट के अंदर। एंड इफ द लिस्टिंग डिले वुड बी हाई, the chances of underpricing would be higher, क्योंकि रिस्क बढ़ा है। जिसको बीच में रिस्क डालूंगा तो मैं अंडरस्टैंड करूंगा हायर थी लिस्टिंग डिले, तो इसलिए लिस्टिंग डिले ज्यादा होने की वजह से रिस्क ज्यादा हो गया, और जब रिस्क ज्यादा होता है तो फिर रिटर्न भी ज्यादा होता है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द लिस्टिंग डिले एंड अंडर प्राइसिंग। तो दोनों के दरमियान जो है वो पॉजिटिव रिलेशन बनता है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा। नहीं नहीं, वो पोस्ट आ गया, लेकिन जितना अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आज नहीं इशू होना था, आईपीओ नहीं हुआ मार्केट में, और इन्वेस्टर क्लेम करते हैं कि ये 15 नहीं तो 15.5 इसका रिटर्न होना चाहिए, इसकी प्राइस होनी चाहिए 15, 15.5, लेकिन शायद हफ्ता एक और गुजर जाता है ना, इन्वेस्टर कैन क्लेम कि रिटर्न शायद अब नहीं, अब ज्यादा रिटर्न होना चाहिए क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है। तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जो मार्केट में फ्लोट नहीं हुआ उसी की बात कर रहा हूँ। जो आईपीओ मार्केट में फ्लोट हो रहा है अभी, अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ, लेकिन वो रिस्क क्रिएट करता जा रहा है। उस रिस्क की वजह से शायद देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी ऑफर प्राइस और मार्केट प्राइस के दरमियान डिफरेंस सेपरेट होता जा रहा है। तो डिफरेंस फैलता जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इफ हायर द लिस्टिंग रिस्क बढ़ता जाएगा तो रिटर्न बढ़ता जाएगा। ये आई उसी आईपीओ की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में भी होना है। ठीक है। आपके नहीं, इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्ट कंपनी तो कभी भी नहीं चाहती कि लिस्टिंग डिले हो, और ये डिले कंपनी के पार्ट पे हो रहा होता है बिकॉज द कंपनी हैज टू फुलफिल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजरल एक्टिविटीज। लेकिन वो प्रोसीजर में बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी नहीं शायद बनाती है, बाद में बना रही होती है, जिसकी वजह से ये टाइम डिले होता जाता है। और वो उस कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से या कंपनी की लेस एफर्ट की वजह से it takes a long period of time to list a company on the stock market, तो जिसकी वजह से वो रिस्क बढ़ता जाएगा, एंड देन इन्वेस्टर्स कैन क्लेम मोर रिटर्न्स। तो इन्वेस्टर का रिटर्न ज्यादा होगा उस लिस्टिंग डिले की वजह से। मैं बताता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए आईपीओ जब मार्केट में फ्लोट होता है उसमें बहुत सारे रिस्क की वजह से उसकी प्राइस इन्फ्लेट हो रही होती है। लेकिन आज सुबह जब मार्केट में आईपीओ इशू होता है तो उसकी मार्केट प्राइस है 15 रुपीज, और वैल्यूशन की आपने बात की है ना, तो वैल्यूशन में 15 रुपीज ही उसकी प्राइस रहनी चाहिए, बिकॉज इट्स एक्चुअली आईपीओ इज बेस्ड ऑन द हाइप।
हाइप क्रिएट करता है ये, सो दैट्स व्हाई द प्राइस कैन रिवर्ट बैक, और शाम जब होगी ना तो शायद 14 रुपए पे खत्म हो जाएगा, अगले दिन फिर मार्केट ओपन होती है तो प्राइस एक्चुअली एडजस्टिंग इटसेल्फ, और प्राइस 12 रुपए पे दूसरे दिन खत्म हो जाएगी। सो इसका वैल्यूएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, द वैल्यूएशन तो हमने कर दिया 10 रुपए का इसका शेयर होना चाहिए, लेकिन वो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ता है, और रिस्क बढ़ने की वजह से रिटर्न ज्यादा हो जाता है। और आईपीओ में होता भी है कि फर्स्ट टाइम में आपका रिटर्न जो भी मैक्सिमाइज करना है वो फर्स्ट टाइम में, तो प्राइस हैज टू रिवर्ट बैक और प्राइस कम होती है until unless it can be far away from the offer price, लेकिन वो ऑफर प्राइस के पास ही है तो फिर बेचारी ने क्या होना। तो ये भी हो सकता है कि 10 रुपए का जो 15 रुपए का शेयर है वो 10 रुपए पे आके खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस शायद 10 रुपए ही है। So it can be different. IPO scenario is basically totally different than the general issuance of the share in the market. So IPO में investors can get more returns on the first, second, third day, but eventually the price move to the equilibrium, and then price can revert back और price को adjust हो जाती है। आपने मेरी स्टडी भी पढ़ी होगी, बहुत सारी स्टडीज में जब नंबर ऑफ डेज की हम ज्यादा बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम इसलिए 10, 15, 20 दिन को वैल्यूएट कर रहे होते हैं बिकॉज द प्राइस आर एडजस्टिंग इटसेल्फ, और जब प्राइस अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है, सो वी कैन फाइंड आउट दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक वीक या 2 वीक के बाद द रिटर्न्स विल बिकम इनसिग्निफिकेंट। इसलिए इनसिग्निफिकेंट होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट श्योर दैट वी विल बी गेटिंग दोज रिटर्न्स, तो इसलिए हम उसको कहते हैं। जी आप बताएं। आप इन्वेस्टर होता ही आईपीओ में, देखिए अगर पॉजिटिव रिटर्न लेने हैं तो आपने 1-2 दिन में उसको सेल करना है, और अगर आप नहीं कर सकेंगे तो देन यू विल नॉट बी गेटिंग पॉजिटिव रिटर्न्स, वो रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाएंगे, प्राइस अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वेरिएबल इज ऑफर प्राइस, एंड वी डिस्कस्ड कि ऑफर प्राइस ज्यादा होती है, इसको डायरेक्टली पहले लेके आए थे लेकिन अब डायरेक्टली यूज कर रहे हैं ऑफर प्राइस को। सो वी कैन फाइंड दैट ऑफर प्राइस इज हायर, जितनी ऑफर प्राइस ज्यादा होगी द चांस ऑफ अंडर प्राइसिंग वुड बी लोअर, लेकिन जितनी ऑफर प्राइस कम होगी तो अंडर प्राइसिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। इट कैन नॉट बी नेसेसरली दैट इट एक्चुअली हैपेंस, लेकिन जनरली हम इसकी असम्पशन ये है कि ऑफर प्राइस जब ज्यादा होती है दैट कैन बी क्लोज टू द मार्केट प्राइस, तो अंडर प्राइसिंग के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ऑफर प्राइस शायद मार्केट प्राइस से दूर होगी तो फिर दी अंडर प्राइसिंग जो है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज एज ऑफ द फर्म, और एज मैंने कहा कि कंपनी की एज 0 है, 1 ईयर है, 11 है, और ये मेरे पास बहुत सारी हर कंपनी की एज आ जाती है। एंड वी डिस्कस्ड कि कंपनी की एज जितनी थोड़ी होगी उतना रिस्क ज्यादा होगा, एंड द चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग वुड बी हायर। और ये भी फर्स्ट डे में, देखिए आपको पता होता है इन्वेस्टर्स को कि इसकी एज बहुत थोड़ी सी है, कंपनी बहुत यंग है, देन दे कैन क्लेम मोर रिटर्न्स, तो चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग वुड बी हाई। ये सारे फैक्टर्स जो है इन्फ्लेट होते 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 अंडर प्राइसिंग को ज्यादा कर रहे होते हैं ऑन द फर्स्ट डे, लेकिन then eventually these are the based on the assumption, so then price can revert back, and within a week the price actually move to the equilibrium that can be close to the offer price, तो price कम हो जाती है। एंड देन ऑफर साइज है, और ये सॉरी फर्म साइज है, और फर्म साइज यहाँ जो प्रॉक्सी दी है दैट इज द टोटल एसेट, फर्म साइज इज अ प्रॉक्सी ऑफ फर्म साइज इज अ प्रॉक्सी ऑफ टोटल एसेट, ये प्रॉक्सी ऑफ टोटल एसेट है यहाँ, ये टोटल एसेट मैंने ले ली है, टोटल एसेट की मेरे पास प्रॉक्सी। तो फर्म साइज इज अ प्रॉक्सी ऑफ टोटल एसेट, ये सारी टोटल एसेट जो है हमने लिए, और ये कुछ कंपनीज हैं जिनके एसेट नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी बिल्कुल यंग है, और पाकिस्तान में मैंने बताया कि बहुत पुराना डेटा है, जब 95 में कंपनीज को छुई और उनमें एसेट जो है वो शायद अभी नहीं बने, एसेट की वैल्यू नहीं है, आईपीओ करना चाहती है कंपनी, और ये सारे सारे फंड्स हैं, ये म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी उनके पास कुछ नहीं है, एंड आईपीओ जो है वो होगा और वो फंड रेज होगा और उससे फिर फंड बनेगा, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जीरो क्यों आ रही है, तो सिर्फ इसको निकाला भी जा सकता है, लेकिन आगे जो मेरे पास डाटा है उसमें शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अर्लियर दे एस्टैब्लिश स्मॉल फंड, and then issuance of IPO they will be getting funds, and then they will be creating their asset, तो ये एसेट तब बनते हैं, और ये एसेट शायद इसलिए बहुत थोड़े से नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये फर्म साइज है, और मैंने कहा कि जितना साइज बड़ा होता है उतना रिस्क कम होता है, एंड चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग विल बी हायर। और ये ऑफर साइज है जी मेरे पास, ये ऑफर साइज है, और मैंने अभी ऑफर साइज बताया आपको। ऑफर साइज मैंने कहा जितना साइज बड़ा होगा, ये जो साइज निकाला गया ना, ये है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ऑफर साइज आता है। अब दो बातें करूंगा, एक ऑफर हाई ऑफर साइज है, एक है लो ऑफर साइज। दो किस्म का साइज हो सकता है, एक होता है लो ऑफर साइज,
एक होता है हाई ऑफर साइज, लो ऑफर साइज। मैंने भी कहा ऑफर साइज जब ज्यादा होगा तो अंडर प्राइसिंग कम होगी। मैंने भी कहा, वहां तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया पोस्ट इशू प्रमोटर में कि उसकी ऑनरशिप कितनी डाइल्यूट हो गई है, कितनी बाकी बची है। लेकिन यहाँ ये मैं कह रहा हूँ कि ऑफर साइज जब ज्यादा होता है, मैंने ये कहा द कंपनी वांट्स टू गेट मोर प्राइस ऑफ द शेयर, ज्यादा प्राइस लेना चाहती है, ज्यादा शेयर इशू करेगी ना, नंबर ऑफ शेयर बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, तो ज्यादा शेयर जब इशू होते हैं तो कंपनी वांट्स टू गेट मोर प्राइस। और जब प्राइस ऑफर प्राइस ज्यादा होती है दैट कैन बी क्लोज टू द मार्केट प्राइस जनरली स्पीकिंग, तो अंडर प्राइसिंग कम होती है। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, हायर ऑफर साइज होगी तो अंडर प्राइसिंग कम, लेकिन लो ऑफर साइज होगी तो कंपनी इज लेस कंसर्न दैट एट व्हाट प्राइस द शेयर्स आर इशूड, जिसकी वजह से देयर इज लो ऑफर साइज की वजह से अंडर प्राइसिंग ज्यादा होगी, लो ऑफर साइज की वजह से ऑफर प्राइस कम है तो अंडर प्राइसिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो देयर इज पॉजिटिव, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, लो ऑफर साइज है, हाई ऑफर साइज, देन स्टिल दे वी हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। और इसको ये ऑफर साइज की प्रॉक्सी भी हैव यूज्ड। एंड नेक्स्ट इज नेट इनकम। देखते हैं इसकी जरूरत है कि नहीं, नेट इनकम हमने यूज की है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं रिटर्न ऑन एसेट यूज करूंगा। रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन एसेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट है, ये मेरे पास को 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया और ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। एंड देन वी हैव अ लेवरेज, और लेवरेज जो है मेरे पास डेट ओवर एक, ये बेसिकली जो लेवरेज लिया गया ना यहाँ, ये है टोटल लाइबिलिटीज। मैं लिखता हूँ इसके आगे इसका फॉर्मूला, टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट है, डिवाइड बाय टोटल एसेट। ये शो करता है कि आपकी जो लाइबिलिटीज, ये शो करता है कि आपके जो एसेट्स हैं, हाउ मच एसेट्स आर फंडेड विद लाइबिलिटीज। लीवरेज ये शो करता है कि जो आपके एसेट्स हैं टोटल, वो कितने परसेंट जो है वो फंडेड है विद द हेल्प ऑफ द बोरिंग फ्रॉम द बैंक। से टोटल लाइबिलिटीज हमने ले लिया क्योंकि जनरल फिनोमेना यूज करना चाह रहे हैं, जनरली देखना चाह रहे हैं हाउ मच लाइबिलिटीज दैट यू हैव पाइल्ड अप अगेंस्ट क्रिएटिंग योर एसेट। तो एसेट को बनाने के लिए कौन सी लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज बेसिकली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है, हाउ मच लोन दैट यू हैव बोरोड एंड देन यू हैव क्रिएटेड योर एसेट्स। ठीक है जी, यहाँ तक हमें समझ आ। और ये एस एंड नो लिखना पड़ेगा, मुझे टाइम का वेरिएबल सेट करना है जी, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा स्टेटा को कि वेदर यू आर ट्राइंग टू सेट टाइम वेरिएबल और नॉट। तो ये टाइम वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए इसका कोई भी नाम दे दें हम इसको एस नो लिखते हैं, यानी सीरियल नंबर लिख रहे हैं, और ये 1 2 3 आपने इसको लिखना है, कंटिन्यूस वेरिएबल बनाना है, क्योंकि इसको हमने टाइम बताना है कि टाइम सीरीज डाटा है। और अगर मैं बाद में पैनल बनाऊंगा तो पैनल डाटा के लिए भी मुझे टाइम बताना पड़ेगा स्टाटा को। वी हैव अ पैनल डाटा, और पैनल डाटा कितना ट्रीट करेगा नाउ हियर कैटेगराइज ऑन द पार्ट ऑफ द टाइम सीरीज डाटा। अच्छा जी, अब ऐसा है कि सारे को अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, या इसको अगर हम कॉपी करने कहीं, या कैसे करें इसको मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी वेरिएशन, ऑफर साइज है, लिस्टिंग डिले है। ये लिस्टिंग डिले में आप देखें 56 है, 65 है, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। ये 211 डेज भी नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा इसमें वॉलिटिलिटी है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। सो इन ऑर्डर टू reduce this volatility we are trying to take the log लेना पड़ेगा मुझे, इन सब का लॉग ले लेता हूँ जिनकी ज़रूरत है। जो परसेंटेज होती है इनका लॉग नहीं होता, ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, टाइम्स है, इनकी लॉग नहीं हो सकता। ये नंबर ऑफ डेज हैं, वी हैव टू टेक द लॉग, उनका लॉग लिया जा सकता है। ऐसा करता हूँ कि इसमें सारे को कॉपी करके नेक्स्ट शीट में लेके जा रहा हूँ ताकि ये डाटा मेरे पास इंटैक्ट रहे, और फिर वी कैन फाइंड आउट इसको कैसे करना है। मैं इसमें एक नई शीट में ऐड कर रहा हूँ जी डाटा, ताकि मैंने इसको, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। अच्छा, मुझे तो सारे बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा यस सर। सर आ अच्छा जी, इसको इंसर्ट कर रहा हूँ और मुझे इसका लॉग लेना पड़ेगा, अदरवाइज हेट्रो का प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर भी मैं हेट्रो चेक करूंगा लॉग लेने के बाद भी। तो इसको हम लिस्टिंग डिले ही लिख रहा हूँ और इसका लॉग लेना पड़ेगा, और ये एल एन हम लॉग इस तरह यूज करते हैं। ये लॉग ले रहा हूँ 56, और ये मैंने इसको एंटर कर दिया। ये इसको दोबारा देख लें आप, तो इज इक्वल टू लॉग, और लिस्टिंग डिले में जो नंबर ऑफ डेज हैं उनको लॉग लिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। इसी तरह वी कैन टेक द लॉग, ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाती है। ठीक है जी, सारी वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, और ये मेरा ख्याल है कि बहुत अब इसमें वेरिएशन नहीं बची। इसको इन दोनों को मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो वी कैन ड्रॉ, देख लेते हैं अगर आप कहते हैं।
अगर मैं देखना चाहूँ तो ये दो मैंने ड्रॉ किए हैं। एक लॉग से पहले का है, नंबर ऑफ डेज लिस्टिंग डिले की बात की है, जिसमें 210 डेज भी आ रहे हैं, और फिर अभी जो है, और अगर मैं बात करता हूँ तो ये मैंने वेरिएशन ख़त्म कर दी है। इसका अगर मैं लूँगा तो इस वेरिएबल के अंदर हेटेरो नहीं होगी अब, लेकिन इस वेरिएबल को मैं यूज़ करूँगा तो वी नो दैट वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ हेटेरो, सो दैट्स व्हाई मैंने इसका जानबूझ के आपको चेक करने के लिए इसका मैंने लिया है। सो वी कैन फाइंड आउट कि दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट मेथड, लॉग लेना ही बेहतर है। सो वी कैन रिड्यूस द एम्बिग्यूटी ऑफ हेटेरो। इसको डिलीट कर रहा हूँ जी, और इसको मैं इसी के ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ। इसको कॉपी करके जी पेस्ट करना है, ताकि इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो जो पहले वाला वैल्यू है वो ख़त्म हो जाए मेरे। इसको पेस्ट स्पेशल करें, पेस्ट किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। पेस्ट जब स्पेशल आएगा मेरे पास, पेस्ट स्पेशल में आए, एंड देन वी कैन यूज द वैल्यूज। इस वैल्यू को मैं यूज कर रहा हूँ ताकि ये इसके ऊपर ही एम्बेड हो जाएंगी, और ताकि मैंने फिर रिग्रेशन करनी है और प्रॉब्लम को डिलीट भी करना है। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने की और ये मेरे पास वैल्यूज आ जाती है। इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने वैल्यूज का लॉग लेके इसको क्लियर कर दिया। अभी तक समझ नहीं आई तो मुझे बताइएगा जी, बिल्कुल मैंने क्लियर बात की है जी। मौसम समझ आ रही है? सर प्लीज रिपीट करते हैं ये वाला जी जी पॉइंट। आवाज आ रही। मैंने लिस्ट के लिए डिलीट कर दी, दोबारा करूँ? दोबारा हूँ मैं दोबारा करता हूँ। मैंने ये किया है कि दोबारा से इसको करते हैं। लॉग लिया, ये सारा लॉग लिया, मैं दोबारा इसको डिलीट करते हैं और लॉग अब लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने लॉग ये लिया था, सॉरी, ये लॉग है जी, ए एल एन, और ये ले रहा हूँ इस सेल को, इस सेल का ही लॉग लेना है ताकि इसको खत्म कर सकें, इसकी जो वेरिएशन है इनको, हेटेरो की प्रॉब्लम जो है इनको टैकल किया जा सके। तो ये लॉग ले रहा हूँ जी, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये लॉग ले लिया, और इसको फिर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये सारी मेरे पास वैल्यूज आ जाती है। मैंने ये कहा था कि इसको कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट करते हैं, ताकि एक कॉलम खत्म करना है, क्योंकि हमने इसको डाटा को पेस्ट करना है इस डाटा के अंदर। तो यहाँ लिख रहा हूँ जी, पेस्ट स्पेशल दिया हुआ है मेरे पास, पेस्ट स्पेशल में आए, और पेस्ट स्पेशल में आने के बाद वैल्यूज को क्लिक क्लिक करें तो ये वैल्यूज आ जाएंगी इसके ऊपर, और ये फार्मूला जो है वो खत्म हो जाएगा। ये वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, और ये खत्म हो जाएगा, इसको खत्म करना है हमें, ये खत्म हो जाएगा। सो वी एक्चुअली obtained द लिस्टिंग डिले, लॉग ऑफ लिस्टिंग डिले हमने ले लिया। ये लॉग ऑफ लिस्टिंग डिले मैंने बना लिया जिसको, ठीक हो गया, ये आ गया लॉग ऑफ लिस्टिंग डिले। एंड नाउ वी हैव ऑफर प्राइस, और ये ऑफर प्राइस की वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल वी हैव टू टेक द लॉग। 80 है, 30 है, so still we have some variation, so we can take the log। इंसर्ट कर रहा हूँ और ऑफर प्राइस दोबारा लिख रहा हूँ, ऑफर प्राइस, एंड देन नाउ वी कैन टेक द लॉग। ये लॉग ले लूँगा, ये लॉग ले रहा हूँ, और ये मेरे पास लॉग की वैल्यू इस तरह नीचे आ रही है। सिंपल लॉग लिया जैसे हमने पहले लिया लिस्टिंग डिले का, इसी तरह मैं लॉग ले रहा हूँ एल ऑफर प्राइस जो भी है उस IPO की, देन वी कैन ट्रैक इट। And now I'm trying to paste all these value on this original value. So this is the value that we have. So paste special, and paste special may we are getting this values. We are trying to paste these values, okay, and then we will be getting these values. ठीक, okay जी। And now we can find out age of the farm। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप एज को देखें ना, तो एज के मैं आपको इम्पोर्टेंट बात भी बताता हूँ। एज देखेंगे तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 29 ईयर्स आ रहे हैं, 42, 48, और कुछ ना कुछ वेरिएशन है, क्योंकि ये सारे आउटलर्स हैं, क्रिएट एंड डिस्टॉर्ट डॉट डाटा। सो इसमें जब भी अगर मैं इसका लॉग लूँ ना, 0 को लॉग नहीं होगा, 0 को लॉग नहीं ले सकता मैं। 0 को लॉग लेता हूँ अगर,
तो जीरो का लॉग नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी होगी और इन्फिनिटी एच, जीरो का लॉग नहीं आ सकता। तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करना है कि 1+H करें, ताकि जो फॉर्म्स जिनकी एज अगर जीरो है तो उसको हम 1 करें। और जनरली एज के अंदर यूं ही किया जाता है, एज के अंदर हमेशा यूं ही किया जाता है। जो आपके पास मैं इसमें फार्मूला लगा रहा हूँ, लॉग 0 1 ले रहा हूँ जी फार्मूले का, जो मैंने ऊपर लिखा है, प्लस ये जीरो वैल्यू लेते हैं, ताकि अगर उसकी वैल्यू जीरो है, अगर उसकी जीरो एज है तो उसको हम 1 इसलिए लिख रहे हैं ताकि उसको भी काउंट किया जा सके, वरना अदरवाइज नहीं होगा। और ये हम बाय लॉ हम कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है, इसको हमने ले लिया, बाकी सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो ये मेरे पास आ रहा है। क्योंकि अगर ये 1 है तब भी वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए 2 की है इसको, तो इसकी वैल्यू आ रही है, सो दैट्स व्हाई इसकी 2 वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है, तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू टेक द लॉग ऑफ द एज वंस वी हैव टू ऐड 1+H। तो ये हमेशा 1+H ऐड करना पड़ेगा, ये आईपीओ के अंदर नहीं, किसी भी डाटा के अंदर अगर आप एज लेते हैं और एज अगर जीरो आ रही है, जनरल assumption ये है कि उसमें 1 ऐड कर लिया जाए। So we can not tackle this problem because there is only one company that are having zero age, and once we can add still they will be getting zero। पहले infinity थी, infinity के बाद अब उसकी वैल्यू जीरो हो गई, इतनी प्रोग्रेस हुई है, ठीक है। So we can add all these values and then we are trying to paste these values into the data. That is the values, that is a paste special। So actually we are adding all the values here। यहाँ तक समझ आती है? ठीक है जी, यहाँ तक हमें समझ आ रही। Now we have another variable that is the font size, and font size को हम लेते हैं, इसका log ले रहा हूँ, log of font size। इसका log लेना पड़ेगा बिकॉज इसमें तो वैल्यूज बहुत बड़ी बहुत छोटी सब कुछ है इसमें। So we can add here and then इसकी वैल्यूज मैंने ले ली और इसको, और जहां जहां ये वैल्यू नहीं आ रही, जीरो है, और बिल्कुल बेसिकली होता नहीं है ये जीरो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ फंड्स हैं जिसकी वजह से ये डाटा में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम जीरो लिख रहे हैं अपने हाथ से, मैनुअली इसको मैं जीरो लिख रहा हूँ, जीरो लिख रहा हूँ, तो ये आंसर इसका आंसर ठीक है नहीं अभी है। एंड देन वी एक्चुअली कैन डिस्ट्रैक्ट। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे प्लीज आप। अदनान बताएंगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा जी, मैं वैल्यू पेस्ट कर रहा हूँ इसमें, ये वैल्यू पेस्ट करते हैं, और ये वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, इनको डिलीट कर रहा हूँ। इसी तरह ऑफर साइज है, इनकम की जरूरत नहीं है मुझे, मेरा ख्याल है इनकम की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ इनकम को डिलीट कर रहा हूँ, और ऑफर साइज को मैं कम करना डिलीट नहीं कर सकता। अच्छा जी, ऑफर साइज को मुझे लेना है लॉग, और ऑफर साइज इसको बच्चे वही तरीका है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। ठीक है जी, मेरे पास डाटा आ रहा है और इन सबको इधर पेस्ट कर रहा हूँ। एंड देन वी कैन डिलीट दिस। इसको इनकम को डिलीट ना करें, इनकम को इस तरह ना करें, ये फार्मूला लगा हुआ है, ये इनकम को टोटल एसेट से, अब मैंने फार्मूला खराब कर दिया, बिल्कुल ही खराब कर दिया, इसलिए कि रिटर्न ऑन एसेट जो है ना जी, ये यहाँ से बना हुआ था, रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज था, जो कि मैंने निकाला है इनकम को डिवाइड किया टोटल एसेट से, और टोटल एसेट जो है वो खराब हो गए, इसलिए पिछले वाले वेरिएबल से रिटर्न ऑन एसेट दोबारा लेके आ रहा हूँ, कॉपी करके इसको वैल्यू करें, पेस्ट स्पेशल में वैल्यू करें, ये बनाए इसको, इसको अगर हम यहाँ से ले लूँ, मैं यहाँ फार्मूला लगा हुआ था, वहाँ फार्मूला इसलिए खराब हो गया क्योंकि वैल्यूज खराब हो गई हैं, तो मैं यहाँ इसको पेस्ट कर रहा हूँ, इसको पेस्ट करें जी, यहाँ पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास वही चीजें आ जाती हैं। अब नेट इनकम को बेशक आप निकाल दें, ठीक है, तो मेरे पास इनकम आ गई, रिटर्न ऑन एसेट आ गया, और लिवरेज आ गई, ये परसेंटेज है, ये भी परसेंट है, जो भी परसेंटेज होती है या प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन कह लें, ये प्रोपोर्शन है इनकम अगेंस्ट दी एसेट, तो ये 1.16% है, 3.09% है, so we cannot take the log, we cannot take the log of the proportion, so we can take the log of the values that are not in proportion generally speaking। तो ये मेरे पास पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, लिस्टिंग डिले आ गया, ऑफर साइज आ गया, एज है, फर्म साइज है, we have offer size, we have return on asset, and then we have the leverage,
and then we have the serial number that we can show as a time series in Stata. ठीक है, जब यहाँ तक डाटा बन गया तो मुझे बताएं, तब मैं मूव करूंगा टू दी स्टाटा, नहीं तो जब तक डाटा नहीं होगा या तब तक मैं नहीं कर सकूंगा। बताएं कि ये शीट आपको भेज दूं। सर ये शीट आप हमें फॉरवर्ड कर दें। इसके बाद हाँ मैं बताता हूँ। मैं जी मैंने इसी के अंदर दो शीट्स हैं, एक वेरिएबल है जो ओरिजिनल शीट है, और शीट 1 में मैंने अभी जो चेंजेस किए हैं। अच्छा जी, डाटा आपके पास आ गया, पहले आप खोलेंगे तो फिर मैं आगे मजीद इसमें बात करता हूँ। डाटा मिल गया जी, मैंने भेज दिया है आपको, और इसको डाउनलोड कर लें ताकि फिर मजीद जी ठीक हो गया। मैं इसको आप मैं पेस्ट करता हूँ आपके सामने, और इसमें स्टार्टर के अंदर, तो स्टार्टर में देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा जी, इसको इसी को आपने सारा कॉपी नहीं करना, अंडर प्राइसिंग से लेके, अंडर प्राइसिंग का वेरिएबल नजर आ रहा है जी, अंडर प्राइसिंग से ले रहा हूँ, अंडर प्राइसिंग से लेके यहाँ तक, ये आगे तक मैं इसको सीरियल नंबर तक इसको मैं ले रहा हूँ, और ये डाटा मैंने ले लिया सारा इसके अंदर से। इसको कॉपी कर रहा हूँ जी स्टार्टर के अंदर। अभी तक हमने स्टार्टर है आपके पास कि नहीं, पहले ये बताएं। या जी सब कुछ पास है। मेरे पास नहीं है। ओह यार, ये क्या करूंगा, मुझे तो याद आया, अभी याद आया कि स्टार्टर तो मैंने कहा था, डाला नहीं था। मैम से कहा था शबाब से, लेकिन उसने शेयर नहीं किया था। मुझे क्लास में चलें आप अभी इसको देख लें, कम से क्लास कम के सीख, बाद शेयर। कुछ लोग सीख लें फिर बाकी बाद में देख लें। ठीक है जी, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद स्टार्टर खोल रहा हूँ, और ये स्टार्टर दिया हुआ मेरा, ये नजर आ रही स्क्रीन अभी। यस सर। अच्छा मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये स्टार्टर मैंने खोला और स्टार्टर के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, ये स्टार्टर को बड़ा करते हैं ताकि नजर आए। और इसमें जो है ये ऊपर दिया होगा डाटा एडिटर, ये डाटा ब्राउजर भी है, डाटा एडिटर भी है, यहाँ डाटा एडिटर पे आपने क्लिक करना है जी। अच्छा, ओके ओके। अच्छा जी, मैंने ये स्टाटा खोला, और स्टाटा खोलने के बाद ये ऊपर डाटा एडिटर दिया हुआ है,
डाटा एडिटर दिया हुआ देखेंगे अगर आप, और डाटा एडिटर पे हम क्लिक कर रहा हूँ और ये शीट खुल जाएगी एक चीज जिसमें आपने डाटा को सिंपल पेस्ट करना है। ये आपसे पूछेगा कि वेरिएबल नेम वही रखने हैं जो आपने रखे हुए हैं। यस, तो वेरिएबल नेम्स वही आ जाएंगे। नाउ आई हैव पेस्टेड द डाटा। और आपको मजे की बात बताऊं कि आप में जो ये जो डाटा है किसी में रेड नहीं आना चाहिए। आपको नजर आ रहा होगा कि ये रेड नजर आ रहा है, जो कि रेड नहीं होना चाहिए। यार ये क्या मजाक है इसमें था। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा जी, मेरे पास ये डाटा जो आ रहा है, अभी ये आपका जो डाटा जब भी आएगा इसके अंदर ये एक्सेल में, इसको हमेशा ब्लैक होना चाहिए। और अगर ये रेड आ रहा है तो उसका मतलब है कि यहाँ वेरिएबल में कहीं ना कहीं मसला है। हमारे पास जो अभी वेरिएबल में मसला आ रहा है वो ये डैश नहीं आनी चाहिए। इस डैश की बजाय वो जीरो लेगा। वो कह रहा है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर यहाँ कोई एबीसी लिखी होगी तब भी रेड आ जाएगा, जिसको मैं यूज नहीं कर सकता। या डाटा में कोई प्रॉब्लम होगी या कॉमे लगे होंगे किसमें, तभी वो डाटा जो है वो बताएगा कि डाटा जो है आपका डिफरेंट है। सारे वेरिएबल जो है वो आपस में शायद बेहतर है लेकिन ये वेरिएबल एक सही नहीं है। तो यहाँ इसका सबसे हल जो है ये इस डैश को मैंने खत्म करना है। और इसका तरीका ये होता है कि इसके ऊपर जो भी आपका सेल है सारे इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें तो फॉर्मेट सेल आ जाएगा। तो आपने नंबर देना है इसको जीरो। तो ये सारी जो जी डैश नजर आ रही हैं ये जीरो बन जाएंगी। तो ये मेरे पास ब्लैक हो जाएगा। मैं दोबारा आता हूँ और दोबारा इसको देखने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ मैंने इसको काम खराब किया। इसको ठीक करते पेस्ट करते हैं। ये जो एक्सेल की फाइल थी इसमें मैंने हमने इसने थोड़ा सा मसला कर दिया। इसको देखते हैं। इसमें जो फॉर्म साइज आ रही है, अगर आपको नजर आ रहा जी, आ रहा जी नजर। अच्छा, अब इसको ना इसको क्लिक कर लें, इसको सारे को, इस पूरी जो कॉलम है इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद आपका राइट क्लिक करना है आपने। राइट क्लिक करें। ये सारी मैंने जो है इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। फॉर्म साइज को नहीं लेना क्योंकि मैं सिर्फ फिगर को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इसको राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आता है फॉर्मेट सेल। ये फॉर्मेट सेल दिया हुआ है। ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि जो डैश है वो जीरो बन जाए, जो डैश है वो जीरो नजर आए, ताकि हम रिग्रेशन कर सकें, अदरवाइज रिग्रेशन नहीं होगी। ये फॉर्मेट सेल है। इस फॉर्मेट सेल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन देता है, ये आ रही है मेरे पास। तो इसको लिखें नंबर, ये नंबर लिखें। और इसको मुझे सिर्फ नंबर शो करना है। और इसको मैं ओके करता हूँ। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ आपके साथ। ये जीरो आ गए हैं मेरे पास सारे जी। ये सारे वैल्यू अब जीरो बन गई हैं। ये जो यहाँ डैश थे वो जीरो हो गए हैं। अब ये मसला मैंने हल कर दिया। दोबारा मैं आता हूँ। इन सबको मैंने हाईलाइट किया और इसके बाद मैं चला गया फॉर्मेट सेल। है नंबर खत्म हो जाए, इसलिए इसको 3 डेसिमल तक रख रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसका तरीका ये है कि इस फॉर्म साइज को मैंने रिप्लेस करना है उससे। इसको मैंने कॉपी किया, ये सारे को, ये फॉर्म साइज के साथ ही आपने कॉपी करना है इसको। इसको कॉपी करने के बाद इसको करते हैं कुछ। मैं सबसे पहले जो है आता हूँ उस डाटा के अंदर, सिंपल डाटा के अंदर पहले आना मुझे।
जी अभी कुछ नजर आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही अभी। अच्छा जी, मैंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन यहाँ मेरे पास नजर आ रहा है जी, अब आपको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी ये ना यहाँ भी लिखा हुआ है एफ साइज, फॉर्म साइज लिखा हुआ है। ये फॉर्म साइज सही नहीं था। और किसी वेरिएबल को आपने निकालना होता है तो उसको लिखें ड्रॉप। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा और बड़ा लिखता हूँ। ये ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप करने के बाद आप इसको क्लिक कर दें, ये फॉर्म साइज पे क्लिक करें। ड्रॉप लिखने के बाद इस फॉर्म साइज को मैं डिलीट करूंगा। ड्रॉप करने के बाद फॉर्म साइज को डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ सारे डाटा से ये ड्रॉप हो गया, ऊपर से चला गया। अब इसको ऐड करने के लिए दोबारा मुझे ये डाटा एडिटर दिया हुआ है, दोबारा मुझे सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये डाटा एडिटर पे आना है। ये डाटा एडिटर पे मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। ये डाटा एडिटर पे क्लिक कर रहा हूँ जी। और डाटा एडिटर क्लिक करता हूँ तो फिर दोबारा से मुझे आना पड़ेगा। चलें इसको करते हैं। अच्छा जी, दोबारा से बड़ी मुश्किल से डाटा आ गया मेरे पास। हाँ, आपने पेस्ट करना है जैसे हमने पहले पेस्ट किया था। यहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ, नजर आ रहा है जी? ये कर्सर रख रहा हूँ। हेलो, हेलो यस यस सर। सर। जी। यस सर। यस मैंने यहाँ कर्सर रखा है, मैंने कहा सब चले ना गया हूँ, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ। ये कर्सर रखा है जिसके ऊपर यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल बी कर रहा हूँ। फिर पूछेगा कि वेरिएबल का नाम वही रखना है जो मैंने रखा हुआ है। यस, वेरिएबल नेम। और ये वेरिएबल मेरे पास आ गया। अब आप देखेंगे ये ब्लैक हो गया सारा। यहाँ जीरो आ गई है, जो वैल्यू डैश डैश थी वो जीरो उसने ले ली। और ये डाटा बिल्कुल सही हो गया। यानी सारा डाटा आपका ब्लैक ही होना चाहिए। ठीक है। और इसको बंद कर रहा हूँ और अब रिग्रेशन करूंगा ताकि वी कैन अंडरस्टैंड। अच्छा जी, मैं रिग्रेशन पे आ गया हूँ। बड़ी मुश्किल से हम रिग्रेशन पे पहुंचे और इसको लिख रहे हैं जी रिग्रेस, सिर्फ रिग्रेस। आर ई जी लिखना है तो रिग्रेस, ये आर ई जी लिख रहा हूँ। एंड वी नो दैट वी हैव अंडर प्राइसिंग।